Good morning, everyone. Trinjana, good morning. Ankita, good morning. Ashraf, good morning, and welcome to the class. 30 seconds, let others to join, and we'll start the class. So, how's the weather at your place? Is it cold? And how's your studies going on? Are you studying on the daily basis or not? Adarsh, good morning, and welcome to the class. Quickly let others join, and we'll start the second part of the recruitment. That is the part of Unit 2, Human Resource Management. Let's wait few seconds more. Shibani, good morning. Okay. So those who are attending for the first time, I believe Adarsh, Shibani, they are attending the class first time. This is your first live class, right? Vibha, good morning. Kageshwar, good morning. Okay, fine. Let me just. Is this slide visible to each one of you? Rashmi, good morning. Welcome to the class. The slide, is that visible? Okay, fine. So we are doing the recruitment. That is the part of the human resource management, unit number 2. Day before yesterday, we started the recruitment topic. Those who are new, I would suggest whenever you come for the class, make sure you are going through the earlier sessions so that you would have the link, what I have been teaching in earlier classes, and you would be able to link the topics. So continuing the topic of the recruitment. Previous session, I told you what do you mean by recruitment. So recruitment is a process of human resource management or a function of the human resource management where actually supply of human resources is done. Organization require human resource, and this human resource come to the organization through what? Through the recruitment. That is what we studied in the last session. Recruitment is an end-to-end process right from sourcing, rather I would say identifying, sourcing, recruiting or selecting, and then placing them, the place where they have to work. This complete process is called as recruitment. Now, there is one of the important pyramid related to the recruitment or yield pyramid related to the recruitment. This pyramid is called as the recruiting yield pyramid. Now, what is this pyramid all about and why this is important? So, whenever there is a recruitment in any of the organization, if I have to recruit for four positions, or let's say 5 positions or 1 position, so if I want to recruit someone for one,
रिक्रूटमेंट सेज दैट यू नीड टू क्रिएट अ पूल. जरूरी नहीं है ना कि मेरे को एक ही एम्प्लॉय चाहिए तो एक का इंटरव्यू ले लूंगी मैं कैंडिडेट का और मुझे वो राइट मैच मिल जाएगा. ऐसे नहीं होता. सो इट इज लाइक यू ऑलवेज सोर्स, initiate, or you source the areas or source the basically the sources, identifying the sources kahan se wo log aapko milenge, then you attract them, then you advertise what you are offering, you match their skills with your requirement, and you create a kind of a pool. This pool consists of the candidates or the people those who are matching your requirement. After creating this pool, you finally select. That is a selection process. But creation of pool is the recruitment. Is that so simple? Is that so simple to hire this, to attract the people and get recruited at the final position? No. So there is an recruitment yield pyramid. Yield मतलब का इसका मतलब क्या है? That मेरे को अगर एक एम्प्लॉय को हायर करना है तो कहीं ना कहीं कम से कम 10 लोग, 5 लोग, इतने लोगों का तो इंटरव्यू लेना पड़ेगा. तो जब मैं 10 लोगों का, सपोज लेट्स से 10 लोगों का या 6 लोगों का इंटरव्यू ले रही हूं, मैंने एक एम्प्लॉय को हायर करना है और मैंने 6 लोगों का इंटरव्यू लिया. 6 लोगों का मैं जब इंटरव्यू ले रही हूं, जरूरी नहीं है एवरीवन वुड बी कमिंग टू माय स्टैंडर्ड और मैचिंग द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट. उसमें से 5, 4, 2, 3 कुछ तो होंगे जो आउट हो जाएंगे, राइट, डीसिलेक्ट हो जाएंगे, या मैं उनको सिलेक्ट नहीं करूंगी बिकॉज वो मैच नहीं करते, उनकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती. सपोज 2 चले गए, 2 हट गए, अब बचे 4. अब 4 जो कैंडिडेट्स मैच कर रहे हैं, इनवाइट किए आपने, अब आप उनका इंटरव्यू लोगे. इंटरव्यू में भी सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, वो भी हटेंगे कुछ ना कुछ. लेट्स से 2 बचे. अब 2 में से दोनों को आपको लग रहा है कि दोनों भी अच्छे हैं, आप ऑफर करते हो कि हमारे पास में ये चीज है, हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं. जरूरी नहीं है ना कि वो कैंडिडेट भी आपको एक्सेप्ट करेगा. सो समवेयर ऑफर एक्सेप्टेड मे बी ओनली वन. सो दिस प्रोसेस, ये जो रिमूवल है या ये जो कम होते जाता है हर स्टेज पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग. दिस इज हाउएवर, और दिस इज एक्चुअली गिवन इन द फॉर्म ऑफ द pyramid. So what is recruitment yield pyramid? Is an historical arithmetic relationship between the recruitment leads and invitees. Arithmetic means there is a ratio. It says that if you are generating a lead, if you hire it, basically this pyramid says that if you want to hire 50 people, you need to generate a lead of 1200. So it starts from the base where you have largest number of the people, largest number of the lead generated. So when you are generating 1200 lead, this lead and those out of this 1200 में से आप कितने लोगों को इनवाइट करोगे? That is 6:1. 6:1 के रेशियो में, यानी 6 लोगों ने अगर अप्लाई किया है तो आप उसमें से एक पर्सन को इनवाइट करते हो इंटरव्यू के लिए. 200 लोग जब इंटरव्यू के लिए आते हैं या इनवाइट किया है, सो लेट्स से आपने 200 लोगों को इनवाइट किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं होते, उनका कोई ना कोई रीजन आ जाता है, तो आप 200 को बुलाओगे ना तो 150 का तो इंटरव्यू हो पाएगा. फिर 150 वुड बी इंटरव्यूड, कैंडिडेट इंटरव्यूज. इन 150 में से 50 तो रिजेक्ट होंगे, 50 और इवन मोर देन दैट कैन गेट रिजेक्टेड. So it would be like 100 people would be shortlisted. So when you are making 100 people shortlisted, you will be making an offer to them. Out of that offer, half people only will be joining. आधे लोग छोड़ देंगे, वो join ही नहीं करेंगे. So recruitment yield pyramid shows an arithmetic relationship between the lead generated and invitees. Then invitees and interviews conducted, interviews and offer mates, and people to whom you are making an offer, the accepted people. So this complete relationship, arithmetic relationship, is called as recruitment yield pyramid. इनके बीच का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा और आपको यही याद रखना है. 6:1, 4:3, 3:2, 2:1. Starts from 6 to
2 ठीक है, आपको ये 6 4 3 2 ये रेशो ऐसे ही याद रखना है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग दैट एन एम्प्लॉयर शुड फॉलो इफ दे वांट टू हायर 50 पीपल। इसी रेशियो में उनको क्या करना चाहिए, इसी रेशियो में उनको क्या लीड जनरेट करनी चाहिए। सो लेट्स से मुझे अगर 100 लोगों को हायर करना है तो ऑफर कितनों को बनाना पड़ेगा, 200 को। 200 को ऑफर करोगे, 50 लोग 2:1 का रेशियो है। और अगर कैंडिडेट 200 लोगों को मेरे को ऑफर देना है तो कितने लोग, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, 600 पीपल हैव टू बी इंटरव्यूड। 600 पीपल को इंटरव्यू करने के लिए मुझे कितने लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो व्हाट इज दैट, right? 2400, right? Then how many people multiplied by 6, how many people have to be generated or called or identified, that is multiplied by 6. So चाहे नंबर यहाँ पे कुछ भी हो, मुझे कितने भी हायर करना पड़े, मुझे रेशियो यही फॉलो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? This ratio is standard ratio, Kageshwar. This ratio is considered to be the standard ratio, successful ratio. There can be other possibility. I'm not saying कि ऐसा ही करना है, but this is considered to be what a ratio or a standard ratio which usually happens. ठीक है? Yes, you have to remember the ratios between them. The lead generated 6:1 is the between what? Lead generated, candidate invited. 3:4:3. आपको अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तो अपने आप समझ में आएगा. So this is your recruitment yield ratio or pyramid. Recruitment yield pyramid. Some employers use recruiting yield pyramid to calculate the number of applicants they must generate to hire the required number of the new employees. Now, this is nothing but for ensuring that you have enough number of prospective employees from where they should select the employees. क्यों होता है ये पिरामिड, क्यों ये पिरामिड को यूज क्यों करना है? क्योंकि एक पर्टिकुलर अगर 50 लोग मुझे हायर करने तो मेरे पास वो तरीके का उस हिसाब का पूल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज हर स्टेज पे कोई ना कोई बाहर जाएगा, डीसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, some employer use this pyramid to calculate the number of applicant they must generate. ठीक है, the ratio, this is what you have to remember, this 4 lines you have to remember. ठीक है, now the question here, which of the following correctly explains a recruiting yield pyramid? Answer, try to answer this question. Just now we did it. Answer this question. Which of the following correctly explains the recruiting yield pyramid? Yes. So the answer is, the definition is 3. So the answer is 3. Let's move to the next. Okay, I have forgotten to add that question, but would add now. Moving to the recruitment cycle. This is your PYQ recently asked in exam. What is recruitment cycle? See, जब मैं एक रिक्रूटर हूं ना, मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैं अगर रिक्रूटर हूं, हर एक फंक्शन का या कोई भी मेथड या कोई भी प्रोसेस आप करते हैं ना, किसी भी फंक्शन का, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिक्रूटमेंट. सो रिक्रूटमेंट इज एन साइकिल which keeps on happening. It has to be continuous overall or all time till the organization is in existence. The reason is it helps to create a pool of candidate who would be available for the right time. So the entire process of hiring or recruiting new employees is known as recruitment cycle or full life cycle of recruitment. Preparation, sourcing, screening, selecting, hiring, and onboarding are the 6 stages. What is preparation?
whenever I want to recruit any position, let's say marketing या sales के लिए मुझे hire करना है. So when I am hiring, I should make a preparation of what? JD, job analysis I have to do. कि इस सेल्स की पोजीशन के लिए मुझे कैसे लोग चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, मैं क्या मेथड यूज करूंगी, ये सब कुछ प्रिपरेशन में करेंगे आप. आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिक्रूटमेंट के, क्यों करना चाह रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए है, दैट इज प्रिपरेशन. देन सोर्सिंग. आपने जेडी बना लिया, डिस्क्रिप्शन आपको पता चल गया, जेएस आपको पता है. अब आपका सोर्स कहां से लाओगे? इंटरनल सोर्स यूज करोगे, एक्सटर्नल सोर्स यूज करोगे. इंटरनल यानी प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, ये सब इंटरनल. एक्सटर्नल यानी बाहर से, कंसल्टेंसीज, कैंपस प्लेसमेंट, कॉम्पिटिटर्स, बाहर से लेके आओगे. तो आपके सोर्सिंग मेथड क्या है? क्या आप न्यूज़पेपर ऐड करोगे, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करोगे, क्या जॉब पोर्टल्स पे डालोगे, क्या वेबसाइट्स पे डालोगे, क्या कंसल्टेंसीज को बोलोगे, या फिर इंटरनली कर रहे हो तो इंट्रानेट, माउथ टू माउथ रिक्रूटमेंट करोगे, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करोगे, दैट इज सोर्सिंग में आएगा. स्क्रीनिंग. once you have given the information to the candidate, they start applying. Screening is the first step to match the JD which you have created earlier and JS with the candidates who have applied. So once you find that yes, there is a match, you shortlist them or keep them aside. Then selecting. Once you have done initial screening, you will find who are the best match. So now here selecting मतलब उनका selecting नहीं हो गया, selection नहीं हो गया. Selecting में आपका टेस्ट आएगा, सिलेक्शन टेस्ट आएगा, मैच देखोगे. Then hiring. Then you do the hiring. After all the test is conducted, you hire them. Yes, now you are final and you are onboarding them, joining, helping them to join in the organization. Yeah, onboarding. Now, recruitment cycle time. Now, what do you mean by recruitment cycle time? To which of the following? Refers to which of the following? Answer this. Just now I have shown you these stages. अब मुझे बताओ recruitment cycle time का मतलब क्या है? Time taken from one recruitment drive to next. Time taken from beginning to the end of the recruitment process. Time taken from the beginning of recruitment to the end of the selection process. Time taken from the notification of the vacancy to the placement of the employee. Yes. Why 4? Okay, so the answer for this is option number 2. Neither 3, neither 4. समझिए, कहां से शुरू होता है रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है प्रिपरेशन से. तो बिगनिंग टू एंड, ठीक है. क्या रिक्रूटमेंट बिगनिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट टू एंड ऑफ सिलेक्शन पे होता है? नहीं, ऑनबोर्डिंग भी तो है. ऑनबोर्डिंग पे खत्म होगा ना, केवल सिलेक्शन प्रोसेस पे नहीं. अभी जो हमने साइकिल पढ़ा, अंडरस्टैंड दिस, अभी मैंने जो साइकिल स्टेजेस पढ़ाए हैं ना, उसके बेसिस पे आंसर करना है. क्या वो नोटिफिकेशन से शुरू होता है केवल? नहीं, प्रिपरेशन करोगे ना पहले जेडी और जेएस. नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज टू द प्लेसमेंट तो सही है, लेकिन केवल नोटिफिकेशन से शुरू होगा क्या? नहीं. सो द आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ there are different sources or the methods of recruiting. ठीक है, we have internal recruitment and external recruitment method. internal method यानी जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपके पास ऑलरेडी टैलेंट है, जो ऑलरेडी आपके पास इन्वेंट्री है एम्प्लॉइज की, वहां से ही आदर प्रमोट करके, डिमोट करके, ट्रांसफर करके, ट्रेनिंग एंड डेवलप करके, अपग्रेड करके, when you are succession planning करके, when you are using this method is called as internal recruitment method, and all other method outside the organization is called as external recruitment method. So word to mouth, job posting, employees inventories or talent inventories, or also called as skill inventories, succession management, internal employee referral. External recruitment में
advertising, educational institutions, career fair, employment agencies, employee search firms, employee referral, sourcing applicant, professional. I will explain them, each of them one by one. Okay. Now, first foremost thing that you need to know, advantages or merit of the internal recruitment and demerit, because there can be a question in the exam, which of the following are correct about internal source of recruitment, or which of the following are not correct about the internal source of the recruitment. So internal source of recruitment refer to seeking the employees from within the organization to fill up the vacant position. Many companies, अब ज्यादातर कंपनीज आजकल ज्यादातर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज करते हैं. क्यों? द रीजन इज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव क्यों? आपको एडवर्टीजमेंट बड़े लेवल पे नहीं करना पड़ रहा है, आपको इंटरव्यू करवाने का खर्चा नहीं करना पड़ रहा है. क्यों? बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी स्किल्स पता है, यू नो देम बेस्ट, सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. इवन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पैसा कम खर्चा होगा, ओरिएंटेशन में पैसा कम खर्चा होगा. रीजन, उनको ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज पता है. सो व्हाट आर द मेरिट? एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड. व्हाई एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड? दे नो देन दैट जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ओपनिंग आएगी मेरे लायक, या जब भी ओपनिंग्स आएंगी मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. दिस मोटिवेट्स देम टू बी विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Employees loyalty, automatically they become loyal to the organization. Cost effectiveness, simplified process. The reason, you don't have to go through complete recruitment cycle in the sense preparation, advertisement. It is simplified process. This employee is matching the required JS, place him. So the complete middle work or middle steps are skipped. Reliability, you can rely here the people, those who are already working with you. Time saving, it saves your time. कॉल करना, बुलाना, उनका इंटरव्यू का अरेंजमेंट करना, मैनेजर से अपॉइंटमेंट लेना, उनके साथ इंटरव्यू करवाना, ये सारा टाइम बचता है. Demerits, lack the fresh. Since you are hiring already people, those who are working with you, the new talent from the market is not available for you. Encourages favoritism. So usually in such kind of internal recruitment, managers will prefer those employees only जिनके साथ उनकी अच्छी बनती है. So this encourages favoritism. Limited scope. Reason, again, there is no fresh talent and there is only limited growth opportunities for organizations, since they can be trained only to their potentiality. Raises conflict. Conflict क्यों? एक employee, if there are two employees, both of them are eligible. If because of favoritism one is being promoted, other would always have a conflict with the manager कि मेरे को क्यों नहीं किया, why I wasn't considered for the promotion or transfer. That are the internal and the external internal recruitments के merits and demerit. अब word to mouth क्या होता है? What happens here? Let's say there are two departments, HR department and your admin department, or let's say marketing department, and these departments are located in another branch also, दूसरे branch में भी है. So word of mouth is, if suppose in another branch B2 there is a requirement of HR, senior HR, ठीक है, and here in this HR department there is one junior HR who is supposed to get promoted, or whose performance is very good, and he is also looking forward for getting transferred to his location. तो word to mouth is, instead of, word to mouth का मतलब क्या है? Instead of making a notice or advertisement, this HR department manager will directly talk to the another manager. वो उसको जाके बताएगा, बात करके बताएगा कि इस डिपार्टमेंट में ओपनिंग है, आपके नजर में अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई है, अपने ब्रांच में कोई है तो बता देना. दिस इज वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है. हियर देयर इज नो ऑफिशियल काइंड ऑफ नोटिस गिवन. एम्प्लॉइज हियर, व्हाट आर द ड्रॉबैक? दैट एक्चुअली जो क्वालिफाइड एम्प्लॉइज है ना, उन तक कई बार इंफॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है, एंड इवन दे मे नॉट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ओपनिंग के बारे में उनको पता ही नहीं चला. हो सकता है एक दूसरी ब्रांच है, ब्रांच 3 में एक अच्छा एम्प्लॉय है जिसे पता ही नहीं चला कि ओपनिंग है,
right? He must be also ready. So that is what the drawback is. Job posting. So job posting is a method where usually the openings within the organization with the JD, attributes, qualification, etc. are posted either on the notice, either on bulletin, either on their website. So there would be a posting of the job. Employee inventories, talent inventories. There, this is like going through the database. आप डेटाबेस में जा रहे हो, डेटाबेस में जाके आइडेंटिफाई कर रहे हो, दिस एम्प्लॉय होल्ड्स दिस स्किल्स, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 years, he has been working for 10 years, his competencies are this. On the basis of this database only, you ask or you approach that employee and provide him the opportunity. Succession management. This is a method of preparing the current internal employee for the upcoming leadership position. आने वाले बहुत सीनियर पोजीशन के लिए, जैसे आने वाले टाइम पे हमारे जो सीईओ है वो 5 साल में रिटायर होने वाले, तो अभी से एक एम्प्लॉय को, एक दो एम्प्लॉय को उस पोजीशन के लिए ट्रेन करना, डेवलप करना, कंटिन्यूअसली ग्रोथ के लिए उनको उनकी पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना, दैट इज योर सक्सेशन मैनेजमेंट व्हिच वी हैव स्टडीड अर्लियर आल्सो. इंटरनल एम्प्लॉय रेफरल. अब ये जो रेफरल है ना, ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है. इंटरनल का मतलब है एक डिपार्टमेंट, एक ब्रांच B1 ने ब्रांच 2 के लिए इंटरनली रेफर किया, एम्प्लॉइज ने ही दूसरे एम्प्लॉय को रेफर किया, दैट इज इंटरनल रेफरल. एक्सटर्नल रेफरल का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय है, उसने बाहर के किसी अपने नॉन पर्सन कैंडिडेट, वो उसको जानता होगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता होगा, उसका फ्रेंड होगा, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेफर किया, उसे एक्सटर्नल रेफरल कहते हैं. इज दिस फ्यू मेथड्स ऑफ इंटरनल, इज दैट क्लियर? आदर्श, शॉर्ट लिस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ योर स्क्रीनिंग. ठीक है, नहीं Kageshwar, no. Don't mix the things. You remember the definitions as it is. Kageshwar, please don't mix the things. This names, if you keep on mixing the things, you will always get mixed up with the definitions. The way I am teaching you, अभी ऐसे लेके चलेंगे ना, अभी अगर हम ऐसे लेके चलेंगे कि वर्ड टू माउथ तो इंटरनल रेफरल होता है, वहां रेफरल कहाँ हो रहा है? वो तो केवल ये बता रहा है ना कि ये ओपनिंग है, वो तो केवल ओपनिंग है ना. मेरे पास में, मैं मैनेजर हूं, मैंने दूसरे मैनेजर से कहा कि हमारे इधर ओपनिंग है, दैट्स इट. आई एम व्हाट? आई एम जस्ट डूइंग एन एडवर्टाइजमेंट, आई एम नॉट रेफरिंग. So internal employee referral is different. Referral is what I am referring. When I am manager, I am saying that I have an employee who can be hired at this position. वो referral होगा, right? Is that clear? Fine. Don't mix up the definitions. If you are going to do that, you would be getting confused. Now, external sources. So when you are doing a recruitment, hiring the employees who have been never associated, जो कभी ऑर्गेनाइजेशन से कभी एसोसिएट नहीं हुए, हम उन्हें क्या कहेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेस. दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग द फ्रेश टैलेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, to have the competitive advantage or survive in competition, because over the time things changes, and as the things are changing, you need to have new people. New people are not always, or your internal employees are not always up to the market, because they are already working in the organization. They will grow as per the organizational requirement, not as per the market requirement. ठीक है? Usually the big organization focus on external recruitment. Merit, fair and impartial. Everyone gets an opportunity, so it's impartial. Transparency, the information shared is very clear. Fresh talent, wider scope. It can be, there are number of ways of hiring externally, so it has got wider scope. It helps the organization to survive or grow in a competition. Employee turnover is high. Sometime due to the external sources, employees within the organization means they may feel
दैट ये ऑर्गेनाइजेशन में तो केवल फायर एंड हायर है, ये लोग नए लोगों को हायर करते हैं, पुराने लोगों को फायर कर देते हैं, तो टर्नओवर ज्यादा होगा. Time consuming, yes, it takes a time because right from preparation it will take complete process. Involves huge cost. Employee may be dissatisfied reason. अगर किसी का ट्रांसफर ड्यू है, प्रमोशन ड्यू है, तो वो सोचेगा कि मुझे ही प्रमोट कर देते हैं दूसरे को लेने के बजाय. सो समवेयर ही वुड बी लाइक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, दिस ऑर्गेनाइजेशन डोंट थिंक अबाउट मी. इनसिक्योरिटी, the internal employees always have an insecurity that they may be removed any point of the time, and there is no security within this organization. Now, first and most common method of doing an external recruitment is advertisement. सबको पता है. Oldest method of doing the recruitment is advertisement. Usually earlier it was newspaper में होता था ना, and ये थोड़ा सा expensive भी होता है. Newspaper में advertisement देना यानी expensive है, but this is considered to be the most effective. Nowadays, other than newspaper, we have career sites, websites. Like company का खुद का website होता है, वो उसके अपने ही website पे भी openings डालते हैं. Online job boards like your Naukri.com, your Monster.com, your IIM jobs. So these all are what? Job boards. Professional association ads and website. So this is like professional consultancies या प्रोफेशनल जो एसोसिएशन होती है वो लोग ही एडवर्टीजमेंट करते हैं, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, रिटन एडवर्टीजमेंट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कुछ यहाँ पे समझाने के लिए नहीं है. नेक्स्ट, you all must have completed your MBA and you all have done internship. किया है ना सभी ने? इंटर्नशिप किया है, सभी ने किया होगा, yes or no? और कितने लोग ऐसे हैं जिसको इंटर्नशिप के बाद जॉब मिली है? एनीवन? जिसको इंटर्नशिप के बाद में आपको डायरेक्ट हायर कर लिया गया? सी, इंटर्नशिप इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ हायरिंग दी राइट कैंडिडेट और पोटेंशियल कैंडिडेट. इंटर्नशिप में क्या होता है? दैट यू गो फॉर अ मंथ, ठीक है, क्या होता है, मंथ या 2-3 months के लिए आप जाते हो, वहां पे यू गेट ट्रेन्ड, यू लर्न द थिंग्स, राइट. And this is in association with the college or university, right? Organization go to the college, they get the students for the internship. Interns learn the process, they go undergo the training program, they undergo the mentorship, and उसके बाद में उनको अगर लगता है employer को that they are having a potential, they hire them. That is your internship. अब externship क्या होता है? Externship is like कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते हो. इट्स नॉट महीने का नहीं होता है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 2-4 दिन का वर्कशॉप करवाती है, या 1-2-3 दिन हफ्ते में वर्कशॉप होता है, जहां पे आप जाओगे और वो कंपनी में हो क्या रहा है, व्हाट इज कंपनी डूइंग, राइट. सो दैट इज अ काइंड ऑफ एन वर्कशॉप जहां वो कंपनी में जाके आप ऑब्जर्व करते हो दैट व्हाट द पर्सन इन दैट पोजीशन इज डूइंग. अगर एचआर मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है तो वो उनके पीछे उनको फॉलो करेंगे 1-2 दिन के लिए, वो बस ऑब्जर्वेशन होता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नशिप. इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान जो स्टूडेंट उनको लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, ये कर सकता है, इसमें इंटरेस्ट है, दे हायर देम. इन एक्सटर्नशिप देयर इज नो स्टाइफेंड, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, बट इंटर्नशिप में यूजुअली स्टाइफेंड मिलता है. Is that clear? That is your educational institution. Career fair, सबको पता है ना, बहुत जॉब फेयर होते हैं. कितने लोग गए हैं? Anyone who have gone through the job fair? Career fairs are the fair where the employers from different sectors, they come at one place. Candidates or potential applicants, they come to that fair, they interact, उनका वहां पे वही के वही. So let's say I am a company, I am in Padai online platform for education and I am going for the job fair. उस job fair में जाके मैं वहां पे जितने लोग आए हैं, I will talk to them, I will let them know what is my company all about and what all opportunities we provide. Basis of that, any of the person or applicant is interested, he or she may give the interview there only, a screening kind of thing. And later on they can be asked to come to the organization for further rounds. So however, career fairs provide an opportunity to the employers and the applicants to interact with each other at the one place.
Then comes your employment agency and search firms. All of you know that employment exchange होता है ना, जहां पे पोस्ट की जाती है, एम्प्लॉयर पोस्ट करते हैं अपने ओपनिंग्स को, और या उनको बोलते हैं कि दैट दिस इज द ओपनिंग वी आर हैविंग, काइंडली हेल्प अस टू गेट दिस फुलफिल्ड. So the employment agency and search firms are specialized in providing or doing the recruitment. इसके अंदर में public employment agency, so employment exchange, employment newspaper आता है ना, employment news, जो कि आपके employment exchange act के अंदर है, वो public employment agency है, गवर्नमेंट की, पब्लिक, सबके लिए फ्री है. प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, यहाँ पे कंपनीज जो होती हैं प्राइवेटली रन होती हैं और ये ओपनिंग से रिक्रूटमेंट करवा के देती हैं. यूजुअली दिस काइंड ऑफ एजेंसी सोर्स क्लरिकल, व्हाइट कॉलर एंड मैनेजरल पीपल. ये यूजुअली इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए होते हैं, और ये चार्ज करते हैं फीस एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉय से भी. आपके टाइम पे मुझे नहीं पता, जैसे आप लाइक यू ऑल स्टूडेंट्स, यू नो, naukri.com पे अगर आप रिज्यूमे डालते हो, उसके अंदर में पेड सेक्शन भी आता है. पहले क्या, कंसल्टेंसीज, अगर आपने किसी को अप्रोच किया होगा, छोटे लोग, मतलब बड़ी कंसल्टेंसी की बात नहीं, बहुत सारे 2-4 लोगों की एजेंसी होती थी जो एप्लीकेंट से कहते थे कि आप 500 रुपीज पर मंथ लगेगा आपका, या वन टाइम पेमेंट 5000 रुपीज लगेगा, और इस साल में जितनी ओपनिंग्स आएंगी वी विल लेट यू नो. सो दे चार्ज द फीस फ्रॉम द एम्प्लॉय. कंटीजेंसी रिक्रूटिंग हायर एजेंसी, कंटीजेंसी इज लाइक इस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर में, और मैं लेट्स से मैं एक एजेंसी हूं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए हायरिंग कर रही हूं. तो यहाँ पे क्या होता है कि इररिस्पेक्टिव व्हाट इज द पोजीशन, एम्प्लॉयर विल गिव सर्टेन परसेंटेज. वो एम्प्लॉय की जो सैलरी ऑफर करेगा 4%, 1%, तो आप जो भी एम्प्लॉय लाके दोगे उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट आपको फ्लैट फी परसेंटेज दिया जाएगा उस न्यू पर्सन की फर्स्ट सैलरी से. ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत होता था, राइट? सो दिस इज वेरी कॉमन विच हैपेंस. सो आई वाज एक्चुअली डीलिंग विथ दिस ऑल्सो. मेरा ये भी काम था व्हेन आई वाज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया. सो यूजुअली आई वाज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग एन एग्रीमेंट विद द एजेंसीज. ठीक है, सो एजेंसीज के साथ में एग्रीमेंट करना, फिर काउंट करना कि अगर कोई एजेंसी से हायर किया गया है, मुझे, हम एज एन टाइम्स को कितना पे करना है, कितना पे करना पड़ेगा उस एजेंसी को. सो दिस वाज आल्सो माय रोल विद द टाइम्स ऑफ इंडिया व्हेन आई वाज वर्किंग विद द टाइम्स ऑफ इंडिया. सो दिस वाज ऑफर्ड टू मी, और दिस वाज गिवन टू मी ओवर आफ्टर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, जब मुझे चीजें समझ में आने लगी. नाउ ऑन डिमांड रिक्रूटिंग सर्विस, दिस इज योर PYQ. अब ये क्या है, ऑन डिमांड रिक्रूटिंग सर्विस? इसमें क्या होता है, the agencies या recruitment consultancies on demand, यानी जब भी रिक्वायरमेंट होगी, शॉर्ट टर्म होते हैं, और ये जब रिक्वायरमेंट होगी ऑन डिमांड ओनली वो सपोर्ट करते हैं. जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे अब हम बात करते हैं कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने ऐसे ऑन डिमांड रिक्रूटिंग सर्विसेज को हायर किया होगा जो स्पेसिफिकली कोविड से रिलेटेड या कोविड सिचुएशन में जो काम कर सकता है वैसे लोगों को हायर किया होगा. सो दे आर स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग दिस शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट. ठीक है, then we have recruitment process outsourcing which is called as RPO. कई बार क्या होता है, जैसे we at Times of India, right, we at Times of India, when we were doing and hiring, we were having our recruitment team as well as we had the consultancy. So complete recruitment process, so there are two things. One is this consultancy, so we had team leads as well. So there was three things: a recruitment process which is being carried out by the internal recruiters, team of recruiter, consultancies who are only providing the candidate, वो शॉर्टलिस्ट करते थे कैंडिडेट को, और वो कैंडिडेट आके इंटरव्यू देते थे. बाकी सारा प्रोसेस हमारे पास होता था. टीम लीड्स ये ऐसे थे जो कैंडिडेट को हायर राइट फ्रॉम प्रिपरेशन हायरिंग करके प्लेस करके देते थे.
तो जब ये प्लेस करके देते हैं ना, सब कुछ करके देंगे, प्लेस करके देंगे, ट्रेन करके देंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और उसके अगेंस्ट वो फीस लेते थे. इज दैट क्लियर? ऑन डिमांड सर्विस, ऑन डिमांड रिक्रूटमेंट सर्विस का मतलब होता है रश्मि कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो स्पेशल एजेंसी हेल्प करती है. जब स्पेशल प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तभी उनको हायर, उनसे सर्विसेज ली जाती है. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सोर्सिंग एप्लीकेंट्स. ये आजकल ना बहुत ट्रेंड में है. जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो आजकल, सोर्सिंग एप्लीकेंट्स का मतलब होता है बेसिकली इट इज टू आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. दिस सोर्सिंग कैन बी डन nowadays. It is being done through social networking, social media like LinkedIn, Facebook, and so on. And there are researchers usually skilled in mining web. This mining web, that is internet data mining कहते हैं, डाटा माइनिंग भी कहते हैं इसको. इसके अंदर में वेब यानी इंटरनेट पे बहुत सारा सोर्स या डेटा अवेलेबल है, वहां से कैंडिडेट को सोर्स करना. प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ही होते हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशली काम करते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस में लेट्स से देयर इज वन वेबसाइट, एक वेबसाइट क्रिएट करी है, और यहाँ पे प्रोफेशन एसोसिएशन इस वेबसाइट पे जो भी ओपनिंग्स के लिए वो हायर कर रहे हैं, जिस भी ओपनिंग के लिए वो हायर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और सर्टिफिकेशन भी देते हैं. दैट इज योर प्रोफेशनल एसोसिएशन. मींस दे हायर यू, ट्रेन यू, सर्टिफिकेट you minimum basic knowledge, and then offer you the opportunity. These are called as the professional association. Clear? Give me a moment. Is that clear? Moving to next. Temporary employees. Who are temporary? जिनकी रिक्वायरमेंट परमानेंट नहीं होती है, पार्ट टाइम होती है. whenever there is an requirement, सप्लीमेंट्री काम करना हो, परमानेंट वर्कर्स नहीं चाहिए मुझे, केवल टेम्पररी बेसिस के लिए चाहिए, this kind of workers are called as temporary employees. They are also known as part time or just in time. टेम्पररी एम्प्लॉयज को हायर करने का बेनिफिट ये है, लो कॉस्ट. उनको आपको बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते हैं, और उनको आप हेड काउंट में नहीं काउंट करोगे, राइट? सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयज. टेम्पररी एम्प्लॉयज हायरिंग को हम अल्टरनेटिव स्टाफिंग भी बोलते हैं. अल्टरनेटिव स्टाफिंग क्यों? इन केस लेट्स से आई एम हैविंग अ पीक, मेरे बिजनेस में अभी पीक चल रहा है, बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन हमेशा नहीं रहेगा. तो जब ये पीक टाइम है ना, मैं उसी टाइम इन एम्प्लॉयज को हायर करूंगी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव स्टाफिंग. नाउ another alternative staffing arrangement include in-house temporary employees. अब in-house का मतलब क्या होगा कि जो employees है ना directly, so there are different ways of hiring the temporary employees as well. In-house का मतलब क्या होता है? So in-house का मतलब क्या होता है? See, दो तरीके. कंपनी है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब या एजेंसी, क्या आप हमें एम्प्लॉयज लाके दो टेम्परेरी के बेसिस पे. ये तो हो गया एजेंसी के थ्रू. एक होता है कि कंपनी खुद अपने बेसिस पे, अपने हेड पे, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं, लॉन्गर टर्म के लिए ही उनको टेम्पररी ही रखती है. उनको क्या करती है? टेम्पररी ही रखेगी, वो उनको परमानेंट नहीं करती है.
उनके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है टेम्पररी, जब तक वो काम चलेगा तब तक आप हमारे लिए काम करेंगे. दैट इज इन हाउस टेम्पररी एम्प्लॉइज, where the employer sign a contract with the employees that you would be working with this period of the time. जब तक 6 महीने का या 6 साल का या 5 साल का प्रोजेक्ट है, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आप यहाँ पे हमारे साथ काम करेंगे. री रिक्रूटिंग, प्रीवियस एम्प्लॉय जो छोड़ के चले गए हैं ना, उनको वापस हायर करना. एक टाइम गैप होता है कि 1 साल बाद. एट टाइम्स ऑफ इंडिया वी यूज टू रीहायर द पीपल जो छोड़ के गए हैं, लेकिन उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी टाइम्स बिजनेस सोल्यूशन में या टाइम्स ऑफ इंडिया में और नए ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम गैप 6 मंथ्स होना चाहिए. इसके बाद दे कैन बी रीहायर्ड. ठीक है. क्रिएटिव सोर्सिंग, nowadays we have chat room, blogs, talent competition, virtual job fair. These all are creative sourcing or creative way of hiring. Observation. Observation is a method, like let's say एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है. दिस इज दिस वे. अन अकेडमी है, बायजूस है, फिजिक्स वाला है. ठीक है, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. ऑब्जर्वेशन इज लाइक अन अकेडमी पे एडुकेटर्स काम करते हैं, बायजूस पे एडुकेटर्स काम करते हैं, एनटीए नेट की कोचिंग अन अकेडमी पे भी है, एनटीए नेट की कोचिंग बायजूस पे भी है. ऑब्जर्वेशन इज लाइक एचआर जो है ना, जो एक्चुअली हायरिंग प्रोसेस करते हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे इधर जो नेट के एम्प्लॉयज हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बायजूस में जो नेट एडुकेट कर रहे हैं या नेट के एडुकेटर्स हैं वो कैसे टीच करते हैं, उनकी स्किल्स क्या है, वो उनको टीच करते हुए देख रहे हैं. So that is they are watching the people doing the similar jobs in another company, evaluate their potential and then offer them job. Rating important, poaching भी बोलते हैं. अब rating का मतलब क्या होता है? एक कंपनी, let's say we with Times of India we had Times Job. Times Job था ना, ये पोर्टल है, जॉब पोर्टल. और है फिर naukri.com, monster.com, shine.com, Hindustan Times. These all are having their own job portals. रेडिंग कॉम्पिटिटर्स या पोचिंग का मतलब होता है कि टाइम जॉब्स हायर कर रहा है नौकरी के एम्प्लॉयज को, सेम प्रोफाइल है, सेम वर्क है. जब वो कॉम्पिटिटर के ही एम्प्लॉय को हायर करता है, वहीं से सेम एक्सपीरियंस, प्रूवन परफॉर्मेंस के एम्प्लॉयज को लेके आता है, उससे पोचिंग कहते हैं, रेडिंग कहते हैं. अब एक टर्म और है हेड हंटिंग. हेड हंटिंग और पोचिंग में डिफरेंस क्या है? हेड हंटिंग में रिक्रूटर्स क्या करते हैं, जरूरी नहीं है वो कॉम्पिटिटर्स होंगे. हेड हंटिंग में लेट्स से आई एम हायरिंग फॉर मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर चाहिए, तो इस मैनेजरल पोजीशन के लिए मार्केट में जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जरूरी नहीं है कॉम्पिटिटर, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे जो जो मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल पे ऑलरेडी काम कर रहा है, उनको पर्टिकुलरली पकड़ के उनकी हायरिंग करना, उनके पीछे पड़ जाना, उनको अप्रोच करना, उनको एक्सप्लेन करना. तो दिस इज हेड हंटिंग. इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि वो कॉम्पिटिटर ही होंगे, लेकिन रेडिंग कॉम्पिटिटर या पोचिंग में क्या होगा कि वो कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं. इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया पोचिंग का मतलब? I will give you the example of poaching. टाइम्स बिजनेस सोल्यूशन टाइम्स ऑफ इंडिया का पार्ट था, फॉर विच आई यूज्ड टू वर्क. दिस हैड टाइम्स जॉब एज एन जॉब पोर्टल. इसके अंदर में जैसे कि naukri.com है, monster.com है, ये आपने सबने सुना होगा, नौकरी, मॉन्स्टर, शाइन, ये सब टाइम जॉब, नौकरी, मॉन्स्टर, ये सब एक ही काम करते हैं. ये सब टीजे के कॉम्पिटिटर्स थे, टाइम्स बिजनेस सोल्यूशंस के कॉम्पिटिटर्स थे. तो जब हम या हमारे रिक्रूटर्स naukri.com के, सो यहाँ पे लेट्स से सेल्स की ओपनिंग है, यहां पे कोई सेल्स का बंदा काम कर रहा है, उसी को बुला के अपने इधर काम करवा लिया, हायर कर लिया. इसे कहते हैं रेडिंग कॉम्पिटिटर्स या पोचिंग. ठीक है. अब कॉम्पिटिटर होना यानी उसका अपना कुछ
व्हाट वी से स्टैंडर्ड या फिर कोई क्राइटेरिया होता है कि वो कॉम्पिटिटर के इसमें कब आएगा। अब हेड हंटिंग क्या होगी, हेड हंटिंग क्या होता है? सो लेट्स से अगेन आई एम हायरिंग फॉर सेल्स, सेल्स के लिए हेड हंटिंग है, सेल्स मैनेजर है। तो हेड हंटिंग में मैं अपने कॉम्पिटिटर से भी ले सकती हूं, जिसे हम पोचिंग बोल देंगे अगर वो कॉम्पिटिटर से, लेकिन दूसरा कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली पोर्टल में डील नहीं करता है, वो लेट्स से किसी प्रोडक्ट में डील करता है, सर्विस में डील करता है वहां पे, लेकिन उसने जो सेल्स करी है लेट्स से फोर्टीज में काम करता है, वो अभी तक फोर्टीज हॉस्पिटल जो है वहां पे मार्केटिंग मैनेजर था। तो मैं क्या कर रही हूँ, हेड हंटिंग में ये मार्केटिंग मैनेजर, मेरी रिक्वायरमेंट 8 साल का एक्सपीरियंस है, प्रूवन गुड एक्सपर्टीज और परफॉर्मेंस है, तो मैं शॉर्टलिस्ट उन कंपनीज को करूंगी जहां पे मेरे जीडी को मैच करने वाले मैनेजर हैं, और इन मैनेजर को इसी, चाहे वो फोर्टीज हो, वो किसी भी सेक्टर का हो सकता है, ठीक है, उनको अप्रोच करके उनसे बात करना, उसे कहते हैं हेड हंटिंग। इज दैट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द पोचिंग, raiding competitors and headhunting, is that clear to everyone? Let's do it quickly, हम यहीं पे अटके रहेंगे। ठीक है, now let's move to walk-ins। walk-ins I believe everyone must have attended it। एक पेपर में एडवर्टीजमेंट होता है या जॉब पोर्टल्स पे एडवर्टीजमेंट होता है, that walk-ins for this position is starting from this date to this, from this time to time, you have to just go there, स्पेशल ईमेल नहीं आता आपको, जाना आपको इंटरव्यू देना। एक्विजिशन एंड मर्जर आर आल्सो द वे ऑफ हायरिंग। जब दो कंपनीज एक्वायर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो बेसिकली उसके एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दो कंपनीज मर्ज करती है तो मर्जिंग में भी एम्प्लॉयज जो चाहिए वो रखे जाते हैं। हेड हंटिंग, हाँ आदर्श, यूजुअली क्या होता है कि ये हेड हंटिंग वाला ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके अंदर ना बहुत सीनियर, बेसिकली सीनियर पोस्ट या मैनेजरल पोस्ट के लिए यूज किया जाता है। आई विल लेट यू नो दिस एग्जांपल। तो हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वी एट टाइम्स बिजनेस सोल्यूशन, हमारे पास में रिक्रूटर्स की टीम थी जो सेल्स के लिए कैंडिडेट्स को कॉल करती थी, और हमारे पास में लीड्स थे, लीड्स यानी लीडर थे, सीनियर लीडर, ये हेड हंटिंग करते थे, ये केवल हेड हंटिंग ही करते थे। जूनियर पोजीशन, एग्जीक्यूटिव के पोजीशन ये रिक्रूटर्स करते थे, और सीनियर लीड थे ये हेड हंटिंग करते थे, यानी सीनियर पोजीशंस की ओपनिंग के लिए ही ये काम करते थे। सो यूजुअली ये मैनेजरल पोजीशंस के लिए होता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब बेस्ड ऑन पर्सनल, यानी लोग कैसे आप हायर कर रहे हो, अगर आपको मैनेजरल या टेक्निकल लोग हायर करने, रिसोर्सेस या पीपल हायर करने या कैंडिडेट हायर करने, तो टेक्निकल या मैनेजरल पर्सनल लेवल के लोगों को हायर करने के लिए आप क्या मेथड यूज कर सकते हो? एडवर्टीजमेंट, इंटरनेट, वॉक इन, कैंपस रिक्रूटमेंट, जॉब फेयर, कंसल्टेंसी, पर्सनल कॉन्टैक्ट, कोचिंग एंड रीडिंग। ऑपरेटिव, ऑपरेटिव यानी जो आपकी डेली डे टू डे एक्टिविटीज होती है ना, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर यूनियन, एम्प्लॉय रेफरल, गेट हायरिंग, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये डे टू डे ऑपरेशनल काम के लिए हायरिंग करने के लिए मेथड्स है। मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यूज कर रहे हो या थर्ड पार्टी मेथड यूज कर रहे हो। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि कंपनी डायरेक्टली, उनके बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट कर रही है, डायरेक्टली कैंडिडेट को अप्रोच कर रही है। So direct relationship between company and candidate is the direct method. Advertising, internal recruiting, campus, job fair, personal contact, gate hiring, ये क्या है? डायरेक्ट मेथड। थर्ड पार्टी में कंसल्टेंसी आ गई बीच में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आ गया, लेबर यूनियंस के थ्रू आ गया, एम्प्लॉय रेफरल बीच में आ गए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आ गए, तो ये थर्ड पार्टी मेथड हो गया। इज दिस क्लियर? वुड यू बी एबल टू रिमेंबर? ये डिफरेंस आपको याद रखना है। यू मे हैव द क्वेश्चन इन द एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्ड पार्टी मेथड ऑफ रिक्रूटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड can be used for hiring managerial or technical personnel, which of the following methods can be used for hiring operational personnel. ठीक है, moving to next, recruitment process outsourcing. This is something which I have already explained you. यहाँ पे end to end recruitment complete process
किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी और कंसल्टेंसीज या थर्ड पार्टी को दिया जाता है। ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का काम करेंगे उस कंपनी के लिए, अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट, प्रोसेसिंग इट, स्क्रीनिंग इट, वो सब कुछ करके फाइनल कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। दैट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका बेनिफिट क्या है? टाइम सेविंग। रिक्रूटमेंट एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है रिक्रूटमेंट में, बहुत सारा टाइम जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव हो जाएगा, वही टाइम कहीं और यूज किया जा सकता है। दूसरा, एक्सपर्टीज, बाहर के लोगों को अंदर लाने का, नया फ्रेश टैलेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, ठीक है। नाउ, ऑन डिमांड सर्विस रिक्रूटिंग, whenever there is an requirement, I have already explained you. Read it. In modern times, there is an increase in the number of on-demand workers. These workers can choose when they work, on what to work, how much to work. अच्छा, अब ऑन डिमांड वर्कर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑन डिमांड रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने समझा दिया आपको। अब ऑन डिमांड वर्कर्स की बात करेंगे। The major worry about on-demand worker is not just about the benefit they receive, but the lack of agency. A future in which computers rather than human determine what you do, when and for how much. Read it and answer it. This is about on-demand worker. On-demand workers कैसे होते हैं? जैसे फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर्स आर ऑन डिमांड वर्कर। जब मुझे जरूरत है मैं आपको बुलाऊंगा, काम करवाऊंगा, दैट इज ऑन डिमांड वर्कर। So the sentences about assertion and reason is about on-demand workers. Please answer. Right? So the answer for this is option number A. ऑन डिमांड वर्कर्स कौन होते हैं? जब जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो कितना काम करेंगे, और यहाँ पे वर्कर्स चूज करते हैं कि मेरी अवेलेबिलिटी इतनी है, मैं इतने टाइम के अवेलेबल हूं, ठीक है, और मैं इतनी देर 8 घंटे या 4 घंटे में काम कर सकता हूं, और ये काम मुझे आता है। लेकिन इन ऑन डिमांड वर्कर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ में ये है कि इनके पास में कोई बेनिफिट्स नहीं होते, ठीक है, बेनिफिट्स नहीं होते हैं, और रादर देन मतलब ये खुद अपना डिसाइड करते हैं। फ्यूचर इन विच कंप्यूटर्स रादर देन ह्यूमंस, तो आने वाले टाइम में ये ऑन डिमांड वर्कर्स के लिए वो खुद नहीं डिसाइड करेंगे। कंप्यूटर जब बढ़ जाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि मुझे आपसे कितना काम करवाना, ठीक है। सो द आंसर इज ए। ये दिस इज योर PYQ रिपीटेटिवली आस्क्ड सिंस लास्ट 2-3 एग्जाम। ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब आपको बता दिया। तो जैसे मैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, थर्ड पार्टी या कंसल्टेंसीज को बोल रही हूं कि मेरा पूरा रिक्रूटमेंट का काम आप करेंगे, तो ये जो थर्ड पार्टी या वेंडर है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, चाहे वो कंपनसेशन मैनेजमेंट का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, वो पूरा काम आपको करके देते, दैट इज आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग में यूजुअली क्या होता है, जो कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले रिक्रूटमेंट करती आई है, वो दूसरे को काम दे दिया उसने उसी कंट्री में, उसी देश के अंदर, ठीक है, अब ये करके दे रही। ऑफशोरिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक कंपनी अपने कंट्री में, अपने देश में काम करवा रही थी, अब वो सर्विसेज वो बाहर की कंट्री में दे रही है। सो ऑफशोरिंग मीन्स हैविंग आउटसाइड वेंडर्स ऑफ एम्प्लॉयज अब्रॉड सप्लाई सर्विस दैट कंपनीज ओन एम्प्लॉयज प्रीवियसली डिड इन हाउस। ऑफशोरिंग, शोर से बाहर जा रहे हो, बाउंड्री पार करके जा रहे हो, ऑफशोरिंग हो गया आपका आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। अब्रॉड का मतलब समझ में आया, यहां आउटसाइड द कंट्री हो जाता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है विद इन द कंट्री ओनली। क्लियर? व्हाट इज आउटसोर्सिंग, व्हाट इज ऑफशोरिंग? गेट हायरिंग क्या होती है आदर्श? ये यूजुअली फैक्ट्रीज वगैरह में ज्यादा होती है।
गेट हायरिंग वो प्रोसेस है जहां पे जो ब्लू कॉलर वर्कर्स है ना, ये लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, फैक्ट्री के गेट पे जाते हैं, गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसको वो रिज्यूमे दे के आ जाते हैं, वो उसको दे के आ जाएंगे, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड आगे पहुंच जाता है, दैट इज नोन एज गेट हायरिंग। हाँ, कैंडिडेट अपने आप जाता है इस तरीके से, ये यूजुअली ब्लू कॉलर पीपल के लिए होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स, दिस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स आर कॉल्ड एज हेड हंटर, आर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ठीक है। ये एजेंसीज भी हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, जो कि रिटेन को एम्प्लॉयर कोशिश करता है कि उनके पास में टॉप टैलेंट जो है उनको हायर करना, ठीक है। दैट इज एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर, जिसे हम हेड हंटिंग भी कहते हैं। यस रश्मि, आउटसोर्सिंग में विद इन कंट्री, जैसे ही बाहर गया वो ऑफशोरिंग हो जाएगा। जॉब सेंटर, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे जॉब सेंटर्स है ना। क्या होता है जॉब सेंटर में, बीपीओज है ना हमारे इधर, या जॉब सेंटर्स है ना। जॉब सेंटर्स आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड मेनली यूज फॉर मैनुअल एंड क्लरिकल कॉल सेंटर्स वगैरह, दैट आर द जॉब सेंटर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, what is the name of the concept in which organization have a local employer abroad who do the job that firm's domestic employees previously did in house? Read it. So the answer is offshoring, ठीक है। When employees abroad supply services companies own employees, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। Recruiting more diverse workforce, this is something new thing which is happening in our society या हमारे इंडस्ट्री में। Recruiting diverse यानी like we have women's, we have nowadays transgenders are also allowed, we have single parents, right? So this is diversity in the workforce. So many employers are focusing on recruiting the women. So this depends upon the organization also, कि वो organization है क्या। Many organizations have started rehiring, or rather not rehiring, I would say they have started giving an opportunity to the women who are qualified but having a career gap. उनके गैप, करियर्स में गैप रहा है प्रेगनेंसी की वजह से, मैटरनिटी की वजह से। So the employer have started hiring them for what? Making a diverse workforce. Somewhere they believe they are good managers. Recruiting single parents, this is also another method of hiring good candidates. Usually the single parents are in high need of requirement of the job, right? So this also they to hire older workers. हमारे जो मिलिट्री से या आर्मी से जो रिटायर हो जाते हैं उनको भी हायर करते हैं लोग, या ओल्डर, बहुत सारे अब्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं स्पेसिफिकली उस कंपनी में केवल ओल्ड पीपल काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद वाले लोग काम कर रहे हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो बिलीव करती है कि जो एक्सपीरियंस ये लोग अपने साथ में लाते हैं ना, ये नए लोग नहीं ला सकते। माइनॉरिटीज, दिस इज वेरी कॉमन। disabled, this is also, you know, so this is what, this is an diversification of the workforce. Philosophies of the recruitment, what's the time? Okay, give me a moment. We will do this tomorrow. Reason, we have already crossed the time for the day. हम इसे कल करेंगे. We will finish up this in 5 to 6 minutes और उसके बाद में we will start the selection. अभी तक जो भी पढ़ाया, is that clear? Because I don't want to finish up this in hurry because this needs an explanation. अभी हमारा दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का क्लास है,
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी जो भी पढ़ा हमने, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट इन पिरामिड, इज दैट क्लियर? ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस. लेट्स डू आवर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्लास.